Good morning, students. I hope you all will be good. In previous class, we have done recap exercise. Okay, students. Now, today we will do numbers up above 100. Okay, students. Look at the book. Look at the book. Pause it and take a screenshot. Okay, students, pause it and take a screenshot. Okay. Question number 1. Complete the table with forward counting. Start 101, 102. Forward counting 103. Complete the table 104, 105, 'Okay, students. In previous class, we have learned numbers 101 to 200. Do like this. 105, 106, 107, 108, 109, 110. Okay, students. Let's. What comes just after 110? 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119. We write 119 here. 120. Okay, students. Complete the table. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130. Okay, students.
What comes just after 130? 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. We write 141 here. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. Okay, students, in question number 1 we have done numbers 101 to 150. You can see question number 2. You can see question number 2. Pause it and take a screenshot of question number 2. Pause it and take a screenshot. Okay, student, in this question, complete the table with backward counting. Okay, student, in previous class you have learned backward counting 100 to 1. Okay, students, 750, 749. What comes just before 749? 748. Okay, students, what comes just before 748? 747. Fill here. 746. 745. 744. 743. 742. 741. Okay. What comes just before 740? Sorry, 741. 740. 739. 738. 737. 736. 735. 734. 733. 732.
721. Okay, student. What comes just before 731? 730. 729. What comes just before 30? 29. So 729. 728. 727. 726. 725. 724. 723. 722. 721. Okay, student. What comes just before 21? 20. 720. 719. 718. 717. What comes just before 17? 16. So 716. 715. 714. 713. 712. 711. Okay, students. What comes just before 11? 10. 710. 709. 708. 707. 706. 705. 704. 703. 702. 701. We have done question number 2. Understand everyone? Okay, students. In this exercise, write the number names. Okay, students, and numbers. So question number 1 and question number 2 you can see here. Pause it and take a screenshot. All the question do your notebook. Understand everyone? Let's start. 725. Write the place of each digit. 5 is at ones. Okay, what is the place of 5? Is at ones. What is the place of 2? Is at tens. What is the place of 2? Is at 100. Write their number names. Okay, students. 200. 25.
Okay, student. 225. Okay, students. Next question. Write the place of each digit. Ones, tens, hundred. Write their names. 800. What is the place of 8? Is 100. 800. 21. Okay, next question. Write the place of each digit. 1, 10, 100. Okay. 600. 42. Okay, students. Next question. Question number E and A. Question number E. Write the place of each digit. 1, 10, 100. Okay, student. Write the place. What is the place of 8? Is 100. 800. 99. Look at the last question. Write the place. Ones, tens, 100. What is the place of 100? Sorry, what is the place of 5? Is 800. 500. 10 and 1 place have 0. We leave it. Okay, students. Next question. Question number 2. Write the numbers. Okay, students. 842. 842. Okay. Question number B. 338. We write places. 1, 10, 100. Okay, student. Look at the question. 300. Write 3 below 100 place. 33. We write 33 below tens and 1 place. Okay, students. Understand? Next question. 599. We write places. 1, 10, 100. 500. 500. We write 5 below 100.
Okay, student, 99 below tens and 1 place. We write here. Okay, students. Question number D. 962. Right place 1, 10, 100, 962. We write 9 below 6 below 100 place. 62 below tens and 1 place. Okay, students. Next question. 750. 1 right places. Same process. 1, 10, 100. 750. Write 7 below 100. Write 50 below tens and 1 place. Okay, students. 609. 1, 10, 100. 609. Write 6 below 100 place. 9. We write 9 below 1's place. We put 0 below tens in tens place. Okay, students. Understand everyone? All the question do yourself. Okay, students. All the question do yourself on your notebook. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि बच्चों हमने आपको पहले चैप्टर में रीडिंग कराई, एक्सप्लेन किया, फिर हमने उसकी वर्ड मीनिंग्स भी बताई, क्वेश्चन आंसर बताया, एक्सरसाइज बताया। इसी प्रकार अभी हमारी कुछ एक्सरसाइज रह गई है, तो हम उसको भी पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपका रह गया था, यहाँ तक हमने इसकी रीडिंग कर ली है, पढ़ भी लिया, लिख भी लिया। तो अब हमको इसको पढ़ना है। कविता में ऐसे शब्द चुनकर लिखिए जिनके अंत में न वर्ण आया हो। ना वर्ण का मतलब जिन शब्दों के पीछे ना वर्ण आया हो, मतलब ना शब्द लिखा हो। जैसे कि लिखा है वरदान, गुणवान, बने, जन, नादान, दान, दीनो, वंदना। ओके, तो एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे हम। ओके, फिर से पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने इसको ऐसे लिखा है, आप भी लिखिए। वरदान, गुणवान, बने, जन, नादान, दान, दीनो, वंदना। इस प्रकार हम आगे पढ़ेंगे इसी को। जिन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक जैसी होती है। अर्थ क्या हुआ? जिन शब्दों की, जैसे कि ये शब्द दिया हुआ, जिन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक जैसी होती है उन्हें तुक वाले शब्द कहते हैं। तुक का मतलब एक जैसा, जिसका बोलने में आवाज़ निकले। ध्वनि का अर्थ है आवाज़, मुंह से जैसे हमारी ध्वनि निकलती है ना, उसको कहते हैं आवाज़। तो नीचे पढ़ेंगे, निम्नलिखित शब्दों के तुक वाले शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के तुक वाले शब्द लिखिए। दाता, पाता। दाता का क्या हो जाएगा? पाता, मतलब एक जैसा वर्ड बन रहा है ना। गाएं, पाएं, गाएं, पाएं। ऐसा, पैसा, ऐसा, पैसा। बालक,
पालक। और एक हमने शब्द और बना दिया इसका, पालन। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। शक्ति भक्ति, शक्ति भक्ति, पढ़ाई लिखाई। ओके बच्चों, हमने इसको पढ़ा, इसी प्रकार आप भी इसको फिर से पढ़ेंगे। और अभी हम ये आपको लिख कर दिखाएंगे कि हम इसको कैसे लिखना है, और आप इसको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। ओके, तो देखिए एक बार हम पहले आपको इसको लिख कर दिखाते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर कैसे हेडिंग लिखी हुई है, आप भी इसको अपनी कॉपी में इसी प्रकार लिखिए। कविता में आए हुए शब्द जिनके अंत में न वर्ण आया हो। तो यह हेडिंग आप अपनी पुरानी कॉपी में ही नोट करेंगे, जहाँ पर आपने ये क्वेश्चन आंसर, खाली जगह, बहुवचन, ये सभी चीज़ें लिखी है ना, उसी जगह पर आपको इसको भी लिखना है। और ये हेडिंग डालिए, फिर अभी हम इसके आगे के शब्द बताएंगे कि इनको कैसे लिखना है। और जो हमने आपको पोयम पढ़ाई थी, उस पोयम को देखिए और फिर उनसे शब्दों को छांट करके यहाँ पर लिखना है। ओके, तो देखिए बच्चों, हमने इसको हेडिंग आपको लिखकर बताई थी। कैसे लिखा था? कविता में आए हुए शब्द जिनके अंत में न वर्ण आया हो, लिखिए। तो ये हेडिंग थी आपकी। फिर हमने आपको ये शब्द आपको लिखकर बताए हुए हैं। इस प्रकार इन शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिखिए। ओके, जैसे देखिए, पढ़िए इसको। वरदान, गुणवान, जन, नादान, दान, वंदना, दोनों, दीनों, बने। लेकिन देखिए बच्चों, दोनों शब्द जो है ना आपकी पोयम में नहीं है। हम आपको पोयम दिखाते हैं, आपको पोयम से ही छांट करके इन शब्दों को लिखा गया है। लेकिन ये दोनों वर्ड जो है ना, थोड़ा सा हमने इसको अलग लिख दिया है। तो आप पोयम देखिए ज़रा एक बार फिर से। और उस हाँ, तो देखिए बच्चों, जैसा कि हमने आपको पहले बोला कि आपको पोयम से देखकर ही इन शब्दों को छांट कर लिखना है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना, इन शब्दों को हमने वहाँ पर छांट कर लिखा हुआ है, जिन शब्दों के लास्ट में न वर्ण आया हुआ है, जैसे गुणवान, वरदान, फिर और भी वरदान, यहाँ पर भी दिया हुआ है जन, जन। ठीक है, इन्हीं शब्दों को हमने वहाँ पर छांट कर यहीं से लिखा हुआ है। तो आप भी इस पोयम को कई बार पढ़िए और उसको छांट कर लिखिए। दान, नादान, ओके, दीनों। ठीक, इस प्रकार हमको इसको देखकर लिखना है। हाँ, तो देखिए बच्चों, जैसा कि हमने आपको पोयम में दिखाया, वहीं से हमने इन शब्दों को छांट करके लिखा हुआ है। तो आगे क्वेश्चन आपको मिलता है, जिन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक जैसी होती है उन्हें तुक वाले शब्द कहते हैं। तो ये भी आपने पढ़ लिया है। फिर इसके बाद हमने इनको आपको ये बताया हुआ है और आपको भी इनको लिखना है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दाता पाता, मतलब इनको क्या कहा गया? तुक वाले शब्द, मतलब एक जैसे ध्वनि बोलने में आवाज़ निकले उसको ध्वनि कहते हैं। तो एक जैसी आवाज़ निकल रही ना, दाता पाता, ऐसा पैसा, शक्ति भक्ति, गायें पाएँ, बालक पालक, और पालन भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई। ओके, तो अभी हम आगे के पेज में भी आपको बताएंगे मैचिंग करना, तो वो भी आप देखेंगे और सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, लिखा है, आपके स्कूल में कौन सी प्रार्थना गाई जाती है? कुछ नए दोस्तों को गाकर सुनाइए। तो आपको अगर याद है स्कूल की प्रार्थना, तो आप उसको अपने मम्मी पापा को सुनाइए, और आपके भाई बहन होंगे उनको सुनाइए। दोस्तों से तो अभी मिलने जाना नहीं है, इसलिए दोस्तों को तो रहने दीजिए, अपने भाई बहनों को सुनाइए और मम्मी पापा को सुनाइए। तभी तो मम्मी पापा कहेंगे कि हाँ, कितने अच्छे बच्चे हैं, हमारी स्कूल की पोयम भी याद है और प्रार्थना भी याद है। तो आप अच्छे बच्चे बन जाएंगे मम्मी पापा की नज़रों में, और आपको याद भी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं, चित्र के साथ सही मिलान कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं आपके, उससे आपको मिलान करना है। मिलान का अर्थ होता है मैचिंग करना। मिलान का क्या होता है? मैचिंग करना। फिर आगे देखते हैं क्या बना हुआ है यहाँ पर,
सूर्य, तो सूर्य को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? सूरज। तो अब देखेंगे आप सूरज कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ से यहाँ पर। तो हमने इसको ऐसे करके यहाँ से सूरज से मैच कर देना है। ठीक, आगे देखेंगे क्या बना हुआ है? बालक। क्या बना हुआ है? बालक है, ये छोटा बच्चा भी कह सकते हैं इसको, लेकिन बच्चा तो उसको कहते हैं जो अपने पैरों पर ज़्यादा जल्दी खड़े होकर नहीं चल पाता, बैया बैया चलता है, उसको बच्चा कहते हैं। लेकिन बच्चा अगर खड़ा होकर के थोड़ा सा चलने लगे, बातें करने लगे, तो उसको हम बालक कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहेंगे? बालक। तो बालक कहाँ लिखा हुआ है? फिर से हम एक बार यहाँ से देखते हैं, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिला। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बालक। फिर इस प्रकार हमने इसको यहाँ से ऐसे करके यहाँ ज्वाइंट कर दिया, जोड़ दिया, मिला दिया, जिसको कह सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला चित्र मिलेगा हमको, फूल बना हुआ है। फूल को इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर। तो फूल तो खुशबूदार होते हैं ना, तो इसी प्रकार हमको फूल को मैच करना है फूल से। तो फिर से हम देखेंगे, यहाँ पर फूल को हमने फूल से मैच कर दिया, ये है, ऐसे करके ऐसे। ठीक, ये मैच हो गया। अगला देखिए बच्चों, चित्र क्या है? ये कौन है? हम तो नहीं पहचान पा रहे हैं। क्या आप पहचानते हैं इनको? कौन है? दरवाजे पे आते हैं डेली, कभी कभी भी आ जाते हैं, और रेलवे स्टेशन पे तो बहुत ही मिलते हैं, बस स्टॉप में मिलते आते हैं। याद आया कुछ? दीन। इनको भिखारी या गरीब भी हो सकते हैं, और उन्हीं को हम दीन कहते हैं। जो बहुत ज़्यादा गरीब हो, पैसा ना हो, रोटी ना हो खाने को, कपड़ा ना हो पहनने के लिए, उसको क्या कहते हैं? गरीब या फिर दीन कहते हैं। तो हमने दीन शब्द को इससे मैच कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, ये कौन है? अरे ये तो मम्मी पापा दिख रहे हैं, पेरेंट्स हैं हमारे। ठीक है, तो पेरेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? मात पिता, और माता पिता भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी बुक में लिखा हुआ है मात पिता। तो फिर हमने माता पिता को ऐसे करके यहाँ से इसको मैच कर दिया। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार हम आपको काम बताते हैं। यहाँ पर जो आपका ये स्पेस पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम उनके नाम लिखेंगे। मम्मी पापा के लिए लिख देंगे मात पिता, यहाँ पर इसके नीचे लिख देंगे दीन, यहाँ लिख देंगे फूल, और यहाँ लिख देंगे सूरज, यहाँ लिख देंगे बालक। तो मैचिंग भी हो जाएगी और आपका एक काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक हम लिखकर आपको बताते हैं अभी कैसे लिखना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, इस प्रकार, तो मात पिता। तो इसी प्रकार यहाँ पर सबके नीचे लिखेंगे हम सभी के नाम। तो एक ये एक्टिविटी हो जाएगी आपकी, जो आप इसको करेंगे। ठीक है, ठीक, ओके। तो अभी हम आपको एक बार पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज कराएंगे। ठीक, तो देखिए बच्चों, एक बार हम फिर से पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं, पूरे पार्ट को फिर से पढ़ते हैं, और आपको ध्यान से हमारे साथ पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, ईश वंदना। ओके, आगे देखते हैं। प्रभु प्रभु हमें दो ऐसा वरदान, प्रभु हमें दो ऐसा वरदान, पढ़ लिख कर हम बने गुणवान, रोज नेक एक काम करें, मात पिता का नाम करें, जन जन के हो तुम ही दाता, हम सबके हो भाग्य विधाता, नित्य करें हम तेरा गुणगान, प्रभु हमें दो ऐसा वरदान। आगे देखते हैं बच्चों, एक बार हम इसको वर्ड मीनिंग्स आपको फिर से बता देते हैं, तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। प्रभु मीन्स ईश भगवान, वरदान मीन्स आशीर्वाद, गुणवान मीन्स अच्छी आदतों वाला, रोज प्रतिदिन, जन जन का अर्थ होता है लोग,
दाता मीन्स भगवान। भाग्य विधाता हमारे भाग्य को लिखने वाला या हमारे भाग्य को बनाने वाला। नित्य प्रतिदिन। गुणवान अच्छी आदतों वाला या अच्छी आदतों को बार बार बताने वाला, वही क्या है, गुणवान है। हमको जो अच्छी बातें बताए और अच्छा बनने के लिए कहे, जब भी तो हम गुणवान बनेंगे। तो ये सब कौन करता है, हमको ईश्वर ही तो सिखाते हैं और हमारे माता पिता सिखाते हैं हमें। ओके, तो आगे देखते हैं बच्चों। तेरी शक्ति बड़ी अपार, करते दीनों का तुम उद्धार। हम बालक तेरे नादान, प्रभु हमें दो विद्या का दान। देखिए बच्चों, हमने इसको आपको रीड कराया, तो अभी हम इसकी एक बार वर्ड्स बता देते हैं आपको। तेरी, तो तेरी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, ईश्वर के लिए, मतलब अर्थात। अर्थात मतलब किसके लिए यह शब्द प्रयोग किया गया, उस शब्द के लिए लगाया गया, अर्थात भगवान। ये तेरी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, भगवान के लिए। अपार मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। दीनों मतलब गरीबों। उद्धार कल्याण। तो इस प्रकार बच्चों हमने सारे लेसन को पुनः पढ़ा और इसकी मीनिंग्स को भी पढ़ा। तो इस प्रकार आपको भी पढ़ना है और इस पोयम को याद करना है। ठीक, तो आगे हम पढ़ते हैं बच्चों। आगे हम इसके वर्ड मीनिंग्स को पढ़ते हैं दूसरे पेज में। ओके बच्चों, देखिए अभी हम इसकी मीनिंग्स याद कराते हैं आपको फिर से, अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार। ईश प्रभु भगवान, ईश प्रभु भगवान। वंदना नमस्कार, वंदना नमस्कार। वरदान आशीर्वाद, वरदान आशीर्वाद। गुणवान गुणों से भरपूर, गुणवान गुणों से भरपूर। विधाता बनाने वाला, विधाता बनाने वाला। अपार जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। उद्धार कल्याण, उद्धार कल्याण। नादान ना समझ, नादान ना समझ। हाँ, तो देखिए बच्चों, आपने ये सारी मीनिंग्स पढ़ी एक बार। अब ये क्वेश्चन आंसर, तो हम पहले आपको क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन केवल पढ़ा रहे हैं, फिर हम आपको इसके आंसर भी बताएंगे। बच्चे किस प्रकार गुणवान बनना चाहते हैं। आगे देखेंगे, बच्चे प्रभु से क्या मांगते हैं। प्रभु किसका उद्धार करते हैं। तो इसके आंसर अभी हम आपको बता चुके हैं पहले भी, लेकिन एक बार हम फिर से आपको बताएंगे, देखिएगा। तो देखिए बच्चों, जिस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हम आपको बताते हैं एक बार। बच्चे किस प्रकार गुणवान बनना चाहते हैं। तो उसका आंसर हमने आपको बताया, पहले भी लिखकर बताया था, एक बार फिर से लिखकर बताते हैं। बच्चे पढ़ लिख कर गुणवान बनना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे प्रभु से क्या मांगते हैं। तो बच्चे किस प्रभु से क्या मांगेंगे, बच्चे प्रभु से विद्या का दान मांगते हैं। ओके, आगे बच्चे पढ़ेंगे थर्ड नंबर, मतलब गा नंबर। प्रभु किसका उद्धार करते हैं। प्रभु दीनों का उद्धार करते हैं। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, हमने आपको ये सारे क्वेश्चन रीड कराए और लिखवाए भी, तो आप इनको अपनी कॉपी में लिखिए और याद करिए। तो अभी हम आगे देखेंगे। ओके, देखिए बच्चों, हमने आपको क्वेश्चन आंसर बताए, वर्ड मीनिंग बताई। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं खाली जगह, जिनको कहा गया है नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए।
क्या कहा गया है? नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। पढ़ रहे हैं पहली पंक्ति। पढ़ लिख कर हम बने गुणवान, नित करें हम तेरा गुणगान। थर्ड लाइन पढ़ेंगे। तेरी शक्ति बड़ी अपार। अगली पढ़ेंगे बेटा। प्रभु हमें दो विद्या का दान। इस प्रकार बेटा हमने ये सारी खाली जगह पढ़े, जिनको यहाँ पर लिखा हुआ है कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए, या लिखा हुआ है नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा करिए। तो बेटा इतना आपको हमने पढ़ाया। इससे पहले हम एक बात और आपको कहना चाहें, आप समय समय पर अपने हाथों को ज़रूर धुलते रहिए। आगे पढ़ते हैं। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो लिखा हुआ है बच्चे किसका नाम करना चाहते हैं। बच्चे किसका नाम करना चाहते हैं। तो किसका नाम करेंगे? माता पिता का। माता पिता का। देखिए पोएम में आपके वहाँ पर लिखा था माता पिता, और यहाँ पर लिखा हुआ है माता पिता। ठीक है, तो हम किसका नाम करेंगे? माता पिता का नाम करेंगे। ओके, इसी प्रकार आगे का इसका क्वेश्चन देखेंगे हम। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए खा नंबर में लिखा हुआ है बच्चे प्रभु से किसका दान मांगते हैं। बच्चे प्रभु से किसका दान मांगते हैं। तो किसका दान मांगते हैं? विद्या का। किसका दान मांगते हैं? विद्या का दान मांगते हैं। ग नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। बच्चे रोज कैसा काम करना चाहते हैं। बच्चे रोज कैसा काम करना चाहते हैं? नया काम करना चाहते हैं। आगे देखेंगे। इस कविता में बच्चे स्वयं को कैसा बताते हैं? नादान। अपने आप को कैसा बताते हैं? स्वयं का अर्थ होता है अपने आप को। स्वयं का क्या अर्थ होता है? अपने आप को। तो इस कविता में बच्चे स्वयं को कैसा बताते हैं? नादान बताते हैं। आगे देखेंगे बच्चों। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। बहुवचन का मतलब अभी हमने आपको बताया था, एक से अनेक, मतलब एक वस्तु फिर दो वस्तु। पहले एक फिंगर फिर दो फिंगर, इसी प्रकार तीन फिंगर, तो अनेक हो जाएगा। इसको ही कह दिया गया बहुवचन। ओके, आगे पढ़ेंगे। बात बातें, बात बातें। रात रातें, रात रातें। बहन बहनें, बहन बहनें। आँख आँखें, आँख आँखें। ऐनक ऐनकें, ऐनक ऐनकें। पेंसिल पेंसिलें, पेंसिल पेंसिलें। आगे देखते हैं। कविता में ऐसे शब्द चुनकर लिखिए। चुनकर का अर्थ होता है छांट कर लिखना, या किसी चीज़ से किसी चीज़ को देख कर लिखना, उन्हीं को कह दिया जाता है चुनकर। ओके, लिखिए जिसके अंत में ना वर्ण आया हो। तो देखिए हमने पहले भी आपको बताया था, हमने इसी पोएम, जो भी लेसन हम पढ़ रहे हैं ना अभी, उसी पोएम से इन शब्दों को छांट कर हमने ढूंढ कर लिखा है। जैसे लिखा हुआ यहाँ पर वरदान, वरदान। गुणवान बने जन, नादान दान, दीनों वंदना। ओके, इस प्रकार फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। वरदान गुणवान बने जन, नादान दान, दीनों वंदना। आगे देखेंगे बच्चों। जिन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक जैसी होती है। अंतिम का अर्थ है लास्ट का अक्षर। अंतिम का क्या अर्थ है? लास्ट का अक्षर, जिसको हिंदी में कहा जाए आखिरी अक्षर। तो ध्वनि एक जैसी
होती है, मतलब एक जैसा उसका साउंड निकलता है मुंह से बोलने पे, उन्हें तुक वाले शब्द कहते हैं। तो नीचे दिए हुए हैं तुक वाले शब्द आपके। तो हेडिंग पहले पढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों के तुक वाले शब्द लिखिए। तो नीचे देखते हैं बच्चों कैसे लिखे गए हैं तुक वाले शब्द। दाता पाता, तो हम इसके जैसे एक जैसा और शब्द मिलाकर बोल देते हैं, खाता। ठीक है, खाता शब्द भी आपका मिलता जुलता ध्वनि वाला शब्द बन जाएगा। गाएं पाएं, जाएं भी हो सकता है, अगर हम जाएं शब्द लिख दें वह भी आपका ध्वनि का शब्द बन जाएगा। आगे है ऐसा पैसा, और एक और शब्द बताएं, जैसा। तो जैसा शब्द सुना है ना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो वो ही वाला जैसा। तो ऐसा पैसा, और चाहे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसा। आगे देखते हैं बच्चों, बालक। तो बालक का पालक। पालक क्या है, एक सब्जी का नाम है, खाने वाली सब्जी, और इसको खाने से ना आँखों की रोशनी बढ़ती है, शरीर में आयरन की कमी नहीं होती, तो इसलिए हमें पालक खाते रहना चाहिए। बच्चे बहुत डरते हैं ना पालक खाने से, तो आप बताइए खाएंगे पालक? ठीक है, तो इसको खाना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इससे शरीर में आयरन की कमी नहीं होती है। तो आगे हम कहाँ पर थे, मिलता जुलता शब्द पढ़ रहे थे, बालक पालक। तो एक शब्द और होता है चालक। क्या होता है, चालक। हमने यहाँ पर एक नया शब्द बना दिया था, पालन, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा, लेकिन हम पालन शब्द इसलिए बना रहे हैं कि ईश्वर जो होता है हमारा पालन करने वाला होता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख कर बताया है आपको, एक पालन शब्द भी होता है। शायद आपको पूरा वर्ड नहीं दिख रहा है अभी यहाँ पर, तो अभी हम आपको बताते हैं पालन। ओके, आगे देखेंगे, शक्ति भक्ति। शक्ति भक्ति, पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई। ओके, पढ़ना, पढ़ाई का अर्थ हो गया पढ़ना, और लिखाई का अर्थ लिखना। तो पेंसिल के द्वारा जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको कहते हैं लिखाई। तो आगे तक देखते हैं बच्चों, इसी प्रकार लिखने के लिए देंगे ना। तो देखिए बच्चों, लिखा हुआ है आगे, आपके स्कूल में कौन सी प्रार्थना गाई जाती है। तो एक काम हम आपको बताते हैं, जैसे प्रार्थना है ना, तो आपके स्कूल में जो भी प्रेयर होती है उसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको प्रार्थना याद है तो आप हमको एक लाइन गा कर सुनाइए ज़रा। अगर अभी नहीं सुना पा रहे हैं तो आप उसको कॉपी में लिख कर रखेंगे। हम हो सकता है जिस दिन आपकी आंसर शीट की वीडियो दिखाई जाएगी तो हम आपका आंसर भी चेक करेंगे कि आपने जो हमने वर्क दिया है वो आपने किया या नहीं किया। हमने जैसे क्वेश्चन आंसर में आपको वर्क लिखने के लिए दिया कि आप अपनी कॉपी में लिखिए और याद करिए, वह भी हम आपकी कॉपी में देखेंगे, और फिलिंग द ब्लैंक्स दिए वो भी देखेंगे। और फिर हमने ये आपको काम दिया हुआ है प्रार्थना। तो आपके स्कूल में जो प्रार्थना होती है ना, उसको आपको एक छोटी सी प्रार्थना लिखती है। अगर आपको याद ना हो तो हम आपको एक लाइन बता सकते हैं, खबरदार छोटी आँख क्या देखती। तो यह प्रार्थना अगर आपको याद हो तो आप लिख सकते हैं। ओके, याद रखिएगा। तो आगे लिखा हुआ है, आपने कुछ नए दोस्तों को अपने कुछ नए दोस्तों को गाकर सुनाइए। तो दोस्तों से तो मिलना नहीं है, इसलिए आप अपने मम्मी को सुनाइए, पापा को सुनाइए, अपने छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को, घर में दादा दादी को, सबको सुनाइए। ओके, आगे देखिए, चित्र के साथ सही मिलान कीजिए। तो आपके सारे चित्रों को हमने मैचिंग करना बताया था, तो आप उसी प्रकार चित्रों को मैचिंग कर लेंगे। लिखा हुआ है माता पिता। माता पिता का अर्थ होता है मम्मी पापा, माता पिता। ठीक है, दीन मतलब गरीब, सूरज सूरज, फूल फूल, बालक बालक। तो इस प्रकार बच्चों हमने आपको पूरा पाठ एक बार फिर से पढ़ाया है। तो आप इस पाठ को बार बार पढ़िएगा और इस वीडियो को बार बार रीस्कैप कर करके पढ़ते जाइए, बार बार रिप्ले करिए, बार बार रिप्ले करिए, और इसको बार बार पढ़ेंगे जब पोएम, तभी जाकर यह पोएम याद होगी। और जब आपके स्कूल खुलेंगे तो हम आपसे यह पोएम सुनेंगे और लिख कर भी देखेंगे। ओके बच्चों, तो एक बात और हम आपको बता दें, आपको अपने समय समय पर हैंड वॉश करते रहना है, या अगर वॉश नहीं करते हैं तो सैनिटाइज़र लगा कर उसको सुरक्षित हाथों को साफ रखना है। और खाना खाने से पहले तो बहुत ही ध्यान रखना है कि अपने हाथों को धुलना है, अपने से बड़ों की बातों को मानना है। ओके, तो आप इस पोएम को कब पढ़ेंगे, एक बार सुबह पढ़ेंगे
और एक बार रात को सोने से पहले पढ़ेंगे। तो सोने से पहले भी पढ़ी चीज़ ना बहुत जल्दी याद हो जाती है, और सुबह अगर उसी को रिवाइज कर लिया जाए तो और भी जल्दी याद हो जाती है। ओके, तो बाय। तो अगले हम पार्ट में आपको मिलेंगे। तो देखिए बच्चों, हम आपको एक झलक आपको अगले लेसन की दिखा देते हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा उस लेसन को पढ़ने में। एक झलक दिखा, देखिए बच्चों, यह है आपका अगला लेसन। तो देखिए, इसमें एक भालू दिखाया गया है जो आपकी ओर देख रहा है। तो ऐसी जैसे आप कार्टून में देखते हो ना, लगता है कि सभी भालू हमारी तरफ चले आ रहे हैं, इसी प्रकार यह भालू भी आपकी तरफ चल कर आ रहा है। तो जब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे देखिएगा कितना मज़ा आएगा। तो ओके, आज के लिए इतना ही, बाय। Student, let's start explanation. Lesson 1. The name of the lesson is Food for Us. First, take a screenshot. Yesterday, I explained food. Food means eatable things. Okay, class? Please turn the page. Need of food. Why we need food? Food help us grow like this. Food help us. Food keep us healthy. Healthy means in good health like this. Sources of food. Sources two type: plants, animals. Plants give us vegetables, fruit, cereal. Now today we will start in this line. Pulses. Pulses means dalein. Okay, class? Pulses are seeds that can be eaten. Seed means the small parts of a plant. Seed means बीज. हमारे जो plants होता है उसमें जो seeds होते हैं, कुछ seeds ऐसे होते हैं जिनको हम ईट कर सकते हैं, वो हमारे लिए ईटेबल होते हैं, हम उसे खा सकते हैं. Some common pulses are. Common means सामान्य. Okay, class? Red lentil. Underline the word red. Lentil means masoor. Okay? Kidney beans. Kidney beans. Underline the hard word. What is the meaning? Kidney beans. This word. The meaning of kidney beans is rajma. Bengal gram means chana. Okay, class? Coffee, tea and sugar. Coffee, tea and sugar. Coffee, tea and sugar are used as beverage. Underline hard word. The meaning of beverage is पेय पदार्थ, a drink. Okay, some common beverage are coffee, tea leaves and sugar.
coffee prepared coffee beans. Look at the picture. This picture is coffee beans. इससे क्या prepared होती है? Coffee prepared होती है. This picture is tea leaves. Okay class? Like this is tea leaves. Okay, sugar. Oil. The meaning of oil is a thick liquid that comes from plants and animals and is used in cooking. Okay class? Oil ऐसा एक प्रोडक्ट होता है जिसे हम किसके लिए यूज़ करते हैं? कुकिंग के लिए. ओके. द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स गिव अस ऑयल. सीड मीन्स द स्मॉल हार्ड पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स गिव अस ऑयल. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनसे हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? ऑयल. और ऑयल किस में यूज़ होता है? कुकिंग में. ओके. मस्टर्ड ऑयल. लुक एट द पिक्चर. मस्टर्ड ऑयल एंड मस्टर्ड सीड like. Okay class? Mustard seed prepared for mustard oil for various purpose like cooking. Okay, eatable oil है ये. Okay class? Second picture is sunflower oil. Okay class? Sunflower seeds. Sunflower seed prepare for sunflower oil. ओके. सनफ्लावर सीड से क्या प्रिपेयर्ड होता है? सनफ्लावर ऑयल प्रिपेयर्ड होता है. नेक्स्ट है कोकोनट ऑयल. कोकोनट. सर्किल द पिक्चर. दिस इज कोकोनट. कोकोनट prepared coconut oil for various purpose. Okay class? कोकोनट ऑयल हम डिफरेंट यूजेस के लिए यूज़ करते हैं. ड्राई fruits. Dry means not wet, without liquid onto. Okay class? Fruits means फल. Dry fruits means मेवे. Okay? Some plants give us dry fruits. The meaning of dry fruits is मेवे. Some common dry fruits are. Common. Underline the word common. सामान्य. Cashew nut. Underline the hard word. The meaning of cashew nut is kaju. Groundnut. Underline the hard word. The meaning of मूंगफली. Walnut. Walnut means अखरोट. Underline the hard words. Spices. Underline the hard word spices. Spices means मसाले. Plants also give us spices. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें क्या मिल सकता है? स्पाइसेस.
स्पाइसेस हम किस में यूज़ करते हैं? अपने खाने में। जब मम्मी खाना कुक करती हैं तो डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस वो यूज़ करती हैं, है ना? क्लोव, अंडरलाइन हार्ड वर्ड, द मीनिंग ऑफ क्लोव, लौंग, ब्लैक पेपर, अंडरलाइन द हार्ड वर्ड, द मीनिंग ऑफ ब्लैक पेपर, काली मिर्च, cardamom, underline the hard word, the meaning of elaichi. Food from animals, वो फूड प्रोडक्ट्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं, लाइक मिल्क, हनी, मीट, एक्सेट्रा. We get milk, honey, meat and eggs from animals. Honey means शहद. Milk, we give milk from cows, buffaloes, goats and camel. Cheese, yogurt and ghee are prepared from milk. Milk give us cow, buffalo, goat, camel. Okay class? Milk prepared different milk product like cheese, yogurt. Yogurt means dahi, cheese means paneer, ghee are prepared from milk. Honey, bees prepared honey from nectars. Underline the hard word nectar. The meaning of the sweet liquid that bees collect from flowers to make. Okay class? Honey bee prepared honey from nectars. जो हनी बी होती हैं वो किससे कलेक्ट करती हैं? फ्लावर से लिक्विड पोर्शन कलेक्ट करके फिर उससे प्रिपेयर्ड करती हैं हनी को. ठीक है? Meat means the part of animals or bird that people eat. Okay? Goat, hens and fish are also sources of food for us. जो पर्सन मीट ईट करना लाइक करते हैं, मीट खाना पसंद करते हैं, वो उनके लिए मीट प्रोडक्ट, उनके लिए मीट के सोर्सेस कौन कौन से हैं? गोट, हैन, फिश. ठीक है? एग्स, duck and hens give us eggs to eat. Now start writing question answer. Okay class? Write down these question answer in your rough notebook. Use your copy of class 1. Write neat and clean. Okay? Neat and clean writing. First write lesson number 1. Next line date, class work. Okay? Question number 1. Question is, what is a food? Class, what finger space is finger space? A finger space food.
and question mark. Okay? Repeat again. What? Finger space. Listen carefully. Is finger space a finger space? Food finger space? Question mark. Next line. Answer. Write down answer in new line. Answer ANS. Answer. Anything that people or animal eat or drink is food. Keep one finger space. Repeat the answer. Anything that people or animal eat or drink is food. Keep one finger space after every word. Okay, class? Question number 2. Question number 2. Why do we need food? Question mark. Repeat again. Why do we need food? Press your pencil. Write neat and clean. Answer 2. We need food when we are hungry. Food helps us to grow. Full stop. Repeat again. We need food when we are hungry. Food helps us to grow. Okay, class? Question number 3. What are the main sources of food? Question mark. What are the food sources of food? Answer 3. There are 2 main
sources of food. Number 1, plants. Number 2, animals. Repeat again. There are 2 main sources of food. Number 1, plants. Number 2, animals. Written class? Very good. Write question answer neat and clean. It's your homework. Write neat and clean